آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تشریف لیں، صلوات پڑھتے تھے. تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ لوگ قریب ہو کے رہیں. آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور اخلاص کی تلاوت فرما کر مندرجہ ذیل مرحومین کی روح میں حصہ فرمائیں. سید اظہر علی صاحب مرحوم، ابن سید یحییٰ علی صاحب، سید ریاض الدین حیدر صاحب مرحوم، ابن سید محمد رضی صاحب، مجیدہ بیگم مرحومہ بنت سید ابو محمد صاحب. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما علي أمير المؤمنين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صلوات بر محمد وعلى حضرات، انداز گفتگو سے آپ کو ابتدائی امر میں آشنا کرنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر فضائل آل محمد روایات و احادیث کے ذیل میں بیان ہوں تو بھی برا نہیں ہے، امر مستحسن ہے، مقبول اور مستحسن عمل ہے. لیکن اس میں پھر بھی سامنے والوں کہ یہاں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ کوئی یہ کہہ کر نکل جائے اپنے گھر کی روایت پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر آل محمد کے فضائل کے سمندر آیات قرآنیہ کے ذیل میں بہائے جائیں تو پھر کسی میں یہ کہنے کی جرات نہ ہوگی کہ اپنے گھر کی آیت پیش کر رہے ہیں. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے، جس میں جناب ابراہیم کی ایک دعا ہے جو بارگاہ احدیت پہ پیش کی جا رہی ہے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہی یہی ہوگا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور ان کے جوابات. جناب ابراہیم علیہ السلام کی
5 ایسی دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جن دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ دعائیں بصارت سے ہی محسوس ہو جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں، معلومات کی وادی میں پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے بصارت کے ساتھ بصیرت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلی دعا جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی، جس کی ابتدا سورہ بقرہ کی 127ویں آیت سے کچھ اس انداز سے ہوتی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے ستونوں کو بلند کر لیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، تو اس مرحلے پہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تو دست سوال کو بلند کرتے ہوئے آواز دی، پروردگار ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے، اور تو دعاؤں کا سننے والا ہے، عمل کے قبول کرنے والا ہے۔ گفتگو اور آگے بڑھی اور آواز دی، پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلمان بنا کے رکھنا، اپنے آگے سر تسلیم خم کی رہنے والا قرار دینا۔ اور پھر بات آگے بڑھی، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری نسل میں ایک ایسی امت کو چلانا جو امت مسلمہ ہو، امت مسلمہ ہو، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہمیں اپنے مناسک کے بارے میں آگاہ کر دے، آشنا کر دے، ہمیں اپنی عبادت کا سلیقہ سکھا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا کہ جن کی توبہ تیری بارگاہ احدیت میں باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا جناب ابراہیم نے کی، خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر چکے تو وہاں پر دست سوال کو بلند کرتے ہوئے دعا کی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ پروردگار ہماری نسل میں ایک ایسی امت کو چلانا جو امت مسلمہ ہو۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، شاید اس سے مجھے کچھ کام ہو آگے۔ ایک ایسی امت کو میری نسل میں چلانا جو امت مسلمہ ہو۔ دعا کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور وہ آیت آ گئی جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے پروردگار، وہ امت جو میں اپنی نسل میں رکھنے کی دعا کر رہا ہوں، اپنی ذریت میں چلانے کی دعا کر رہا ہوں، اس میں اس امت والوں کے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنا کر بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ دعا سورہ بقرہ کی ہے، اس کا جواب سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ابراہیم، ہم نے تمہاری دعا کے جواب میں امت والوں کے درمیان ایک ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا، نفسوں کو پاک بھی کرے گا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا، تسلسل سے گفتگو ہے۔ یہاں پر جناب ابراہیم نے دعا کی، سورہ بقرہ میں دعا کا تذکرہ ہوا، جواب سورہ جمعہ میں آیا کہ جو ابراہیم نے دعا کی تھی، اس دعا کے جواب میں ہم نے ایسے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے جو ان تینوں فرائض کو انجام دے گا۔ اب آپ غور کیجئے، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ میرے سامنے محترم شخصیتوں کے ساتھ ساتھ 2 عظیم شخصیتیں علماء اسلام کے شکل میں تشریف فرما ہیں۔ مجھے گفتگو کرنے میں اور بھی لطف آئے گا کیونکہ ان کی موجودگی میرے لیے حوصلے میں اضافے کا باعث بنے گی۔ عزیزان گرامی، دیکھیں آپ، جناب ابراہیم نے دعا یہ کی ہے کہ میری نسل میں ایک ایسی امت کو چلانا جو امت مسلمہ ہو۔ اب جو قرآن میں سورہ جمعہ میں ایک لفظ آیا ہے، لفظ امی، وہاں پہ بڑی کنٹروورسی ہے، بڑا اختلاف ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا کہ ہم نے نبی کو امی یعنی جاہل بنا کے بھیجا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشہور جواب علماء کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا امیین فی الامیین، ہم نے امیوں کے درمیان رسول مبعوث کیا ہے۔ مکے کے اسامی میں سے، مکے کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ام القریٰ ہے۔ تو امی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جاہل،
बल्कि उम्मुल कुरा से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान हमने ऐसे इंसान को भेजा है। और फिर उसके बाद अगर हम उम्मी का मतलब जो एक मतलब जाहिल अगर मान भी लें कि जाहिल का मतलब उम्मी का मतलब जाहिल होता है, तो बलागत पे गौर करें। उलमा तशरीफ़ फरमा है फिल उम्मीजीना, ये अल्लाह ने कहा है कि हमने उम्मियों के दरमियान भेजा है, ये नहीं कहा कि हमने उम्मी को रसूल बनाया है। दोनों में फ़र्क है। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीजीना, हमने उम्मियों के दरमियान, उम्मियों के बीच में किसी को रसूल बना के मबूस किया है। अब जिसको रसूल बनाया उसकी सिफत क्या है कि वो तालीम देगा, वो किताब हिकमत पढ़ाएगा। गौर कर रहे हैं, वो नफ्सों को पाक करेगा। तो अगर जाहिलों के दरमियान किसी को मबूस किया जाए तो ये गारंटी नहीं है, ये दलील नहीं बन जाती इस बात के ऊपर कि वो खुद भी जाहिल है, वो खुद भी अनपढ़ है। मैं एक बात अर्ज करूं कि देखिए, आपके यहाँ मैं तालीम देने के लिए आया, किसी बच्चे को आपने बुलाया कि हमारे बच्चे को तालीम दीजिए, पढ़ा दीजिए, और मैं पहले ही दिन ये कह दूं कि मैं खुद जाहिल हूं, तो इंसाफ से बताइएगा आप में से कोई गवारा करेगा कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर पे रखे, ट्यूशन दे? आप कहेंगे जब आप खुद ही पढ़ना नहीं जानते, आप खुद ही जाहिल हैं, तो मेरे बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? आप अपने एक बेटे के लिए गवारा ना करें कोई वो आके पढ़ाने लगे जो जाहिल हो, और खुदा पूरी आलम इंसानियत को पढ़ाने के लिए उसको भेज दे जो खुद जाहिल हो। अज़ीज़ान गिरामी, इस सिलसिले में ज़्यादा नहीं रुकना है, एक एक जवाब पर रुक करके पूरी मजलिस पढ़ता हूँ, मगर मुझे एक मजलिस में गुफ्तगू को समेटना है। सिर्फ एक बात कहूँगा इल्म पैगम्बर के हवाले से, चूँकि कुरानी गुफ्तगू हो रही है। कुरान में एक सूरा है, सूरह अहज़ाब 33 नंबर का 33 नंबर का सूरा है, उसकी 33वीं आयत है, आयत तत्हीर। उसके पहले और उसके बाद में नबियों का तस्करा, नबी की बीवियों का तस्करा है मुअन्नस की ज़मीरों, मुअन्नस के सेगों के साथ। बीच में एक आयत है, आयत तत्हीर, मुज़क्कर की ज़मीर के साथ। अब यह भी पूरी बहस है कि इससे क्या साबित होता है, लेकिन उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। मगर वहां जब नबी की बीवियों को खिताब किया गया सूरह अहज़ाब में, तो इस तरीके से गुफ्तगू का आगाज हुआ, या निसा नबी लस्तुन्ना काहादिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों देखो आम औरतों की जैसे बन के ना रहना। मैं अपने लफ्जों में नकल कर रहा हूँ, मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। ए नबी की बीवियों देखो तुम आम औरतों की जैसी बन के ना रहना, आम औरतों के अंदाज जिंदगी से अपने अंदाज जिंदगी को बदल लो, आम औरतों के जैसे बनकर के न रहना। गुफ्तगू आगे बढ़ाई और आवाज दी, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहना। कुरान ने ऐलान कर दिया, बता दिया कि नबी की बीवियों की जगह कहाँ है। इसके आगे आपको खुद अपने अज़ान को लेके चलना है, बाशऊर मजमा मेरे सामने है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों देखो घर से बाहर कदम निकालने की कोशिश न करना, तुम्हारी जगह तुम्हारा मकान है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला, और देखो ज़माने जाहिलियत की आदतें छोड़ दो। अपने लफ्जों में कह दूं, खुदा ये कह रहा है, ऐ नबी की बीवियों अल्लाह को तुम्हारी जहालत पसंद नहीं है, अल्लाह को तुम्हारी जाहिलियत या जहालत, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, मैं दोनों को मिला के एक साथ चल रहा हूं। अल्लाह ने कहा कि खुदा ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी की बीवियों देखो अल्लाह को तुम्हारी जहालत पसंद नहीं है। ये नबी की बीवियां कौन है? वही तो जो नबी के घर में आ गई। जो नबी के घर में आ जाए, खुदा को उसकी जहालत पसंद ना आए और अपने नबी को जाहिल बना के भेज दे। और कर रहे हैं, एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी। तो यहाँ सूरह जुमा में सूरह बकरा की उस आयत का जवाब आया। मुझे बहुत तेजी के साथ आपको आखिरी दुआ और उसके जवाब पर लेके चलना है। दूसरी दुआ, इसका तस्करा इस तरीके से हुआ कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल को खाने काबा के पास ला के बसाया है, तो आवाज दी, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। परवरदिगार, मैं अपनी ज़ुर्रियत को, बाज़ ज़ुर्रियत को तेरे घर के पास बसा के जा रहा हूँ। तेरे घर के पास अस्कनतो, सुकूनत दिला के जा रहा हूँ। मशहूर तर्जुमा यह कि छोड़ के जा रहा हूँ। नबी ने यह नहीं कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अस्कन तो सुकूनत, मस्कन कहते हैं मकान को, रहने की जगह को। बेआबो गया सरजमीन पे एक शिरखार बच्चे के साथ माँ को लावारिस छोड़ देना, ये खिलाफ हिकमत अमल है जो नबी नहीं करता। लिहाजा ये नहीं कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना इन्नी अस्कनतो, मैं तेरे मुहतरम घर के पास अपनी ज़ुर्रियत को बसा के जा रहा हूँ। क्यों बसा के जा रहा हूँ? रब्बना लयुकीमुस्सलात,
ताकि खुदाया ये नमाजें पढ़े और पढ़वाएं, ये काम सलात करें। अज़ीज़ान गिरामी, अभी गुफ्तगू और आगे बढ़ेगी तो वाज़ेह हो जाएगा कि इस नस्ल में जो जनाब इब्राहिम ने बसाया है कौन है। इसी नस्ल में हजरत अमीरुल मोमिनीन भी हैं, खानदान बनी हाशिम भी है, खानदान अब्दुल मुत्तलिब भी है, औलाद जनाब अब्दुल्ला भी हैं। इसी नस्ल में पैगंबर अकरम भी हैं। ये नस्ल वाज़ेह हो गई। ये नस्ल वो है कि जिस नस्ल में अली है, और यही मक्का वो है और यही काबा वो है कि जहाँ अली की विलादत हुई है। और जो चाहता हूँ, हमारे दरमियान जितने अफराद भी हैं वो दो दावा करते हैं। कुछ वो हैं जो ये कहते हैं, एक पैगाम देना चाहता हूँ, कुछ वो हैं जो ये कहते हैं कि हम औलाद अली में से हैं। कुछ हैं जो कहते हैं कि हम आशिक अली हैं, मुहिब अली हैं। दो तरीके के अफराद हमारे यहाँ पाए जाते हैं। या ये कहते हैं कि हम फर्जंद अली, या ये दावा करते हैं मुहिब अली। और ये जो अली जिस नस्ल में है, जिस नस्ल को खाने काबा के पास जनाब इब्राहिम ने बसाया है, उलमा तशरीफ फरमा है, अरबी में लाम अक्सर औकात रीजन को, सबब को, इल्लत को समझाने के लिए आता है। इब्राहिम ने कहा रब्बना ले युकीमुस सलात, मैं अपनी नस्ल को यहाँ इसलिए बसा के जा रहा हूं तेरे घर के पास ताकि नमाजें कायम करें, नमाजें कायम करें। तो याद रहे कि जो भी अली वाला होगा वह बेनमाजी नहीं हो सकता है, वो बेनमाजी नहीं हो सकता है। लिहाजा जो नमाज से दूर हो, लाख दावा मोहब्बत कर ले, समझ लीजिए कुछ ना कुछ खराबी जरूर है उसमें। जो अली वाला होगा वो मुहिब्बे अहले बैत जो भी होगा, मुहिब्बे अली जो भी होगा, इस नस्ल का आशिक जो भी होगा वो नमाजी होगा, वो नमाजी होगा। जो नमाज से दूर हो वो समझ लिए मोहब्बत अली से दूर है। ज़बानी दावा तो है मगर अमलन मुहिब्बे अली नहीं है। इसलिए कि यहाँ ये बताया कि हम इस नस्ल को बसा के ले युकीमुस सलात इसलिए जा रहे हैं ताकि नमाजें पढ़ें और पढ़वाएं। सिर्फ पढ़े नहीं, इकामे सलात करें, नमाज पढ़ें भी और नमाज पढ़वाएं भी। तो आपको नमाज सिर्फ खुद नहीं पढ़ना है बल्कि दूसरों को नमाज की दावत भी देना है, अगर अली वाले हैं तो। और कर रहे हैं रब्बना लियुकीमुस सलात। फिर दो आगे बढ़ाई। अच्छा, यहाँ ला के बसाया इतनी दूर, कहाँ जनाब इब्राहिम रहते थे? ये कुरानी तारीख है, मुफस्सिरीन ने भी तहरीर किया है। जनाब इब्राहिम सरजमीन बैतुल मुक़द्दस पे रहते थे। यहाँ ला करके सरजमीन हिजाज पे, मक्के की सरजमीन पे इनको क्यों बसाया? तो इसका पस मंजर उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने तहरीर किया कि जनाब हाजरा जो कनीज ज़ौजा थी, कनीज थी, उनके यहाँ जनाब इस्माइल की विलादत पहले हुई है। जनाब सारा जो हुर ज़ौजा थी, जो नबी की शरीक हयात थी, जनाब सारा के यहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत बाद में हुई है। इस्माइल बड़े बेटा और दोनों ज़ईफ़ी की औलाद हैं। दोनों उस वक्त पैदा हुए हैं कि जब जनाब इब्राहिम अपनी जिंदगी की 80 बहारें गुजार चुके थे। हाज़ा बाली शेखा, कुरान का जुमला गवाह है। कैसे जब बशारत मिली औलाद की तो कहा कैसे ये हो सकता है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये मेरा शौहर बूढ़ा हो चुका है, मेरे शौहर बूढ़े हो चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मगर वहाँ ये ताकीद की गई कि रहमत खुदा से मायूस न हो। मालूम ये हुआ अल्लाह जब जिसको जहाँ जैसे जिस तरह जो चाहे अता कर देता है। रहमत खुदा से किसी हालत में, किसी मरहले में इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। बहरहाल जनाबे इस्माइल पहले पैदा हुए। अब जनाबे सारा के दिल में तकाज़ाए निस्वानियत के तहत हसद की आग शोलावर हुई। देखिए, बहुत एहतियात से हमको आगे बढ़ना है, इसलिए कि जनाब सारा तारीख़ इस्लाम की 10 मुक़द्दस तरीन ख़वातीन में से हैं। नबी की बीवी भी हैं, नबी की माँ भी हैं। लिहाजा एक लफ्ज़ को मैंने बढ़ा दिया, तकाज़ाए निस्वानियत के तहत हसद की आग शोलावर हुई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उलमा ने वजह लिखी है वहाँ से जनाब हाजरा को यहाँ लाने की, तो कहती है कि आप इनको मुझसे दूर कर दीजिए, आप इनको मुझसे दूर कर दीजिए। शायद वजह ये रही हो कि इनसे नफरत नहीं है, मगर जब जब इन पे नजर पड़ेगी तो अपनी कमी का एहसास होता जाएगा। मुझसे दूर कर दीजिए। तो अब दूर कितना दूर करना था? आज से तकरीबन 4,500 साल कबल 50 किलोमीटर का फासला बहुत था, 100 किलोमीटर बहुत था। मगर कहाँ सरजमीन बैतुल मुक़द्दस, फिलिस्तीन की सरजमीन, और कहाँ सरजमीन हिजाज, वहां से ला के यहाँ बसाने की वजह क्या है? तो मैं अपने नौजवान भाइयों को मुतवज्जे करने के लिए मिसाल दे दूं। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े फायदे अपने पीछे लिए होती हैं, बड़े बड़े फायदे अपने पीछे लिए होती हैं। आदम अव्वल की तारीख आपके जहन में है। जनाब आदम को पैदा इसी जमीन के लिए किया था। खिलकत से पहले कह दिया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ।
लेकिन उतारा कहाँ? जन्नत में। अब जन्नत की रानाइयाँ, जन्नत की सहूलतें, जन्नत की ऐश व इशरत, जन्नत के आराम, जन्नत की खूबियां, जो लफ्ज भी आप बेहतर हो इस्तेमाल कर लें, वो सारी चीजें जनाब आदम देख चुके थे। अब उस सुकून भरी जिंदगी के बाद इस इम्तिहान की जिंदगी में आना था, इस जमीन पर उतारना था, तो कोई तो बहाना चाहिए था वहां से यहाँ भेजने के लिए। आवाज दी गई, ला तक़रब हाज़िही शजरता, देखो तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अब अगर करीब चले जाते तो गुनाह होता, करीब चले जाते तो गुनाह हो जाता, इसलिए कि करीब जाने से मना किया गया था। लेकिन इतना आगे खुद सोचना था कि जब करीब जाने से रोका गया है तो उसके मेवे के हुसूल और मेवे के खाने में भी कुछ ऐब होगा। बेहतर यह था कि मेवे से ही परहेज कर देते। फ़अज़ल्लहुम शैतान, तारीख आपके सामने कुरानी हिकायतें हैं। शैतान ने उन लोगों के सामने ये बात रखी कि देखिए, शैतान हमारी क्या बात है, बड़ी बड़ी शख्सियतों के सामने अपने मक्र फरेब के जाल फैलाना चाहता है। ये अलग बात है कि कोई तर्क औला करता है, कोई गुनाहगार हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी है, मासूम है, लिहाजा गुनहगार तो नहीं हो सकता है, मगर हाँ तर्क औला नहीं बेहतर। जनाब आदम ने जो बेहतर था उसे छोड़ दिया, चूंकि जिनके रुतबे हैं सेवा, उनको सेवा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सेवा, उनको सेवा मुश्किल है। जनाब आदम ने गुनाह तो नहीं किया, लेकिन बेहतर यह था कि उस दरख्त का फल भी ना खाते। फल खा लिया तो जो बेहतर था उसे छोड़ दिया, तर्क औला किया, तो आवाज आई कि तुम दोनों जमीन पे चले जाओ। तो ये दरख्त का फल खाना, ये छोटी सी गलती, ये भी अपनी जबान की तंगी की वजह से मैं लफ्ज़ गलती इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना नबी गलती भी नहीं करता है, मगर ये छोटी सी गलती कितना बड़ा फायदा अपने पीछे लिए हुए थी। अगर वो दरख्त का फल खाते नहीं तो जमीन पे आते नहीं, कारवान बशरियत आगे न बढ़ता, सिलसिले हिदायत आगे न बढ़ता। तो आपने देखा कि कभी कभी बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी गलतियां बड़े फायदे अपने पीछे लिए होती हैं। तो जनाब सारा ने हसद क्यों किया? बात दरअसल ये है, मेरा नौजवान तबका भी मेरे सामने है, लिहाजा मैं एक जुमला कह दूं। बात दरअसल ये है कि इसी मक्के की सरजमीन पे एक अजीम इंसान को आना है जिसका नाम होगा अबू तालिब, और अजीम खातून को आना है जिसका नाम होगा फातिमा बिन्त असद, और इन दोनों के इंतजाम से एक अजीम बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अली होगा, और अली को पैदा काबे में होना है। मैं गुजारिश फिर करूंगा, आप लोग और आगे आ जाए, सिमट जाए, इधर काफी जगह है, बाहर लोग गेट तक पहुंच चुके हैं। सलवार पढ़ते हुए आप लोग आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। जो लोग पीछे हैं अंदर आ रहे हैं, काफी जगह है, आ जाइए इधर आगे, आप भी आ रही है। एक और सलवार पढ़े पर मौका लूंगा। देखिए, जगह का जो मैटर है वो तो है ही है, मगर एक बात और अर्ज कर दूं, जो आप छितरे में बैठे हुए हैं, अलग अलग बैठे थे, होता यह है कि जब गुलाब होता है फूल, तो अगर अलग अलग हो तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन कई गुलाब मिलकर गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार कर ले तो हुस्न में इजाफा हो जाता है। तो ये गुलाब बाग हुसैनी बिखरे भी खूबसूरत है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाए तो गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार करेंगे, हुस्न में इजाफा हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे आ जाए आप लोग, बाहर अभी कुछ लोग मुझे इशारा हो रहा है, इसलिए आप अपने आप हज़रात मेरा मोहतरम मजमा मेरे साथ आ गया तो मुझे भी गुफ्तगू मजा आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, तो जनाब खालिक कायनात ने कुरान मजीद में, अब बुजुर्गों के लिए एक बात कह दूं, मौला के चाहने वालों के लिए जुमला मैंने कह दिया, बुजुर्गों के लिए एक दलील दे दूं। खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये घर वो है कि जहां बना है इस जमीन का, या बाज लोगों के कहने के एतबार से इस घर का इंतखाब अल्लाह ने पहले ही से कर रखा था। तो जनाब सारा का हसद बहाना बना कि हाजरा को और इस्माइल को लेके यहाँ आए और खाना काबा की तामीर हो या तामीर जदीद हो, दो अलग अलग रिवायतें, अलग अलग नजरिए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पर आने के बाद अब मौला के चाहने वाले आ गए, दुआ इब्राहिम का मैं जवाब दे देता हूँ। दुआ क्या की?
परवरदिगार यहाँ बसा के जा रहा हूँ, अब लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे। नस्ल इब्राहिमी और नस्ल इस्माइली आपके ज़हन में आ गई, मैं इशारा कर चुका हूँ। कहा फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, खुदाया लोगों के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दे, लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे। आवाज़ कुदरत इब्राहिम, मैं करीम हूँ, जितना मांगा जाता है उससे माँ सेवा देता हूँ। तो सही कि तुमने लोगों की मोहब्बत, लोगों के दिलों में अपनी औलाद की मोहब्बत डालने की गुफ्तगू की है, दुआ की है। मैं तुम्हारी औलाद की मोहब्बत को अज्र रसालत बनाऊंगा मोहम्मद के जमाने में। कुल ला असलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। थोड़ी देर तक बड़ी बेदारी के साथ कुरान मजीद की वादियों में सफर कीजिएगा। फज़ाइल आले मोहम्मद के कुछ गोशे आपके हवाले कर रहा हूं। ये 2 दुआ और इसके जवाबात आ गए। तीसरी दुआ अजीजान मोहतरम, एक ही आयत में दुआ भी है और उसका जवाब भी है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा मजलिस का रंग आ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की मजलिस का। अजीजान गिरामी, दुआ भी है और जवाब भी है, मगर जो बात भी मैं अर्ज कर रहा हूँ अपनी जानिब से नहीं, ये सब कुरान है। अजीजों देखिए, कुरान मजीद में सूरह बकरा की 124वीं आयत बहुत मशहूर है, आपने सुनी होगी। ऐलान हुआ वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काला वमिन ज़ुर्रियती काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आवाज़ कुदरत इब्राहीम, हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। वो नबी के जो पहले से नबी था, रसूल था, खलील था, साहिब कुतुब आसमानी था, साहिब सोहफ आसमानी था, साहिब शरीयत था, उस अजीम नबी ने जो बानी काबा था, उस अजीम नबी ने आवाज दी, खुदाया मेरी नस्ल में भी इमामत रख दे। वमिन ज़ुर्रियती, जैसी इमामत का मनसब मिला, कहा मेरी नस्ल में भी इमामत रख दे। क्या कहा अल्लाह ने, दूंगा या नहीं? न हाँ कहा न नहीं, बल्कि एक मेयार बताया, एक कसौटी बताई। आवाज ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ऐ इब्राहिम ये मेरा मनसब है जो गुनहगारों तक नहीं पहुंच सकता है, जो जालिमों तक नहीं पहुंच सकता है। अज़ीज़ान ग्रामी, पहली बात तो ये है, मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दे दीजिए मौलाना हजरत से माज़रत के साथ। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने कहा, ये सब कुरान है, ला यनालु अहदी, ये मेरा ओहदा है, ये मेरा मनसब है, या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ है। अल्लाह ने अहदी कह के ये बता दिया कि मनसब इमामत मनसब इलाही है, सकीफा की खेती नहीं है, ये बद्दू औरत के घर की खेती नहीं है। तो है नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कुरान कर रहा है। ला यनालु अहदी, किसी को इख्तिलाफ और इतराज हो तो कुरान से इख्तिलाफ करे, कुरान पे इतराज करे, ये मेरा ओहदा है। जो अगला जुमला, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा, शिया सुन्नी सब ने, मुतरजमीन ने, जुल्म यानी गुनाह। तो आपने कुरान का ये ऐलान सुना कि ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ये मेरा ओहदा इमामत गुनहगारों तक नहीं पहुंचेगा। अब आइए उसी कुरान को हम दूसरी जगह देखते हैं, क्या इरशाद होता है, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, बुत परस्ती है। तवज्जो चाहता हूं, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी मुआफी मुमकिन नहीं है। फिर एक मैसेज दे दूं, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी मुआफी मुमकिन नहीं है। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया है कि एक मुशरिक अल्लाह का अगर कोई किसी को शरीक बना दे तो उस मुशरिक की जगह सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, मुआफी मुमकिन नहीं है। और दूसरे माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औलाद, माँ बाप का दिल दुखाने वाला बेटा, वो माँ बाप के जिनके लिए कुरान ने कहा ला तकुल लहुम उफ भी न कहना उनके लिए। उफ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उफ हमारे यहाँ भी बोला जाता है कभी कभी, उफ भी ना कहना। और यही छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर उफ से भी छोटा लफ्ज होता तो कुरान में उसका इस्तेमाल किया जाता माँ बाप के लिए, नाराजगी के इजहार के लिए। अगर उफ से भी छोटा और मामूली लफ्ज होता तो वो इस्तेमाल होता, वो भी माँ बाप के सामने न कहा जाए। तो आप देखिए कि अल्लाह ने माँ बाप को, वालिदैन को यहाँ इस मरहले में इस जिहद से कितनी बुलंदी अता कर दी। कहा या मैं अपने दुश्मन को माफ नहीं करूंगा या माँ बाप के दुश्मन को माफ नहीं करूंगा, बराबर में रखा है। इन दोनों का ठिकाना जहन्नम है। कितना भी अच्छा अमल अंजाम दे दे, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं हो सकता, खुदा राजी नहीं हो सकता है, अल्लाह राजी नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ने एक तरफ कुरान में यह कहा कि इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है,
दूसरी जानिब ये कहा कि ला यनालु अहदिज ज़ालिमीन, ये मेरा ओहदा गुनहगारों तक नहीं पहुंचेगा। तो अब मुझे इंसाफ से बताइएगा कि इमामत का मुस्तहिक वो होगा जो 60 साल तक आगोश कुफ्र शिर्क में रहा हो, या वो होगा जो पैदा हो तो दस्ते रिसालत पे कुरान सुनाए। सलवात और मोहम्मद जो पैदा हो तो कुरान सुनाए। ये 3 दुआ और उसके जवाबात आ गए अली वालों के सामने। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि 5वीं दुआ पे आपको थोड़ी देर रुकना है। अज़ीज़ान गिरामी, आइए 4थी दुआ देखते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये सवाल होता है कि अली का नाम कुरान में है या नहीं, अली का नाम कुरान में है या नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक मुश्किल ये होती है कि अगर वो बातें पढ़ी जाएं जो आप सुन चुके हैं तो कहते हैं सुनी सुनाई बातें कर रहे थे। अगर कोई नई बात पढ़ दी जाए तो फिर कहेंगे कि अभी तक सुना नहीं, 60 साल के हो गए, अभी तक सुना नहीं, कहां से पढ़ दिया। तो इसलिए हमारी मुसीबत दोनों सूरतों में है। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आपका मेयार कुछ भी हो, आपका अंदाज कुछ भी हो, या आपका ख्याल कुछ भी हो, आप सूरत आप नहीं है, जनरल बात कर रहा हूं, वो बातें हो जिसके लिए कम से कम अपना ज़हन, दिल और ज़मीर मुतमईन हो। आइए, अली का नाम है या नहीं कुरान में, पेश करता हूं। लोग सवाल करते हैं कि मौला का नाम कुरान में कहां है। सूरा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ हमें और कुरान में मिली, आवाज दी वजअल्ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। खुदाया हमारे लिए आखिरी दौर में किसी को लिसान सिद्क बना दे, सच्चाई की जबान बना दे, हमारा इंटरप्रेटर बना के भेज दे, तर्जुमान हक बना के भेज दे। ऐसा इंसान हमारे लिए भेज आखिरी दौर में कि जबान उसकी हो, सच्चाई मेरी जाहिर हो। एक लफ्ज़ में तवज्जो चाहूंगा। मुझे ये बताया गया था कि यहाँ का मजमा बहुत मोतबर है और बहुत बाशऊर है, तो मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि मेरी बातें रायगा नहीं होंगी और मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा। और एक जुमला और कह दूं कि देखिए, आप में से हो सकता है कुछ हज़ार टीचर्स हों। टीचर का, उस्ताद का मिजाज क्या होता है कि जब वो क्लासरूम में होता है तो वो चाहता है कि जितने स्टूडेंट सामने सबका रिस्पांस मिले। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपका उस्ताद हूं, मगर ये बता सकता हूं कि मेरा प्रोफेशन भी टीचिंग है, तो मिजाज टीचिंग वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए, जनाब इब्राहिम की एक दुआ हमें नजर आई, आवाज दी वजअल्ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। खुदाया हमारे लिए किसी को लिसान सिद्क बना दे आखिरीन के दौर में। आखिरीन क्या है? जमाने को उलमा इज्तिमाइयात ने 3 हिस्सों में बांटा है। एक जमाने उला है, जनाब आदम से लेकर जनाब नूह तक का जमाना। एक जमाने वुस्ता है, जनाब नूह से लेकर पैगंबर खत्मी मर्तबत तक का जमाना। एक जमाने आखिरीन है, नबी से लेकर सुबह क़यामत तक का जमाना। इसे आखिरीन कहा जाता है। जनाब इब्राहिम ने दुआ की, बहुत लुत्फ आएगा आपको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, खुदाया वजअल्ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, मेरे लिए लिसान सिद्क, सच्चाई की जबान बना के किसी ऐसे इंसान को भेज जो आखिरी दौर में आए। जमाने आखिर में किसी ऐसे इंसान को भेज दे जो बोले तो लोग मुझे सच्चा कहें, जबान उसकी हो, गोयाई मेरी हो। मुसलमानों, इसका जवाब आया या नहीं आया? इब्राहिम की दुआ कबूल हुई या नहीं कबूल हुई? ये हो नहीं सकता कि खलील खुदा की दुआ कबूल न हुई हो। अगर कबूल हुई तो जवाब लाओ, अगर तुम्हें मिलता है तो ठीक, वरना हम पता बताते हैं। सूरह मरियम में जवाब आया। दुआ दोहरा दूं पहले, वजअल्नी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। खुदाया आखिरी दौर में मेरे लिए किसी को लिसान सिद्क बना के भेज दे। आवाज आई, वजअलना लहुम लिसाना सिद्किन अलिया, हमने उनके लिए अली को लिसान सिद्क बना के भेज दिया। आप माशाल्लाह नारा लगा रहे हैं, तो आपकी हौसला अफजाई के लिए एक बात कह दूं कि हम हर मरहले पे इस नाम का सहारा लेते हैं, बल्कि जब नाम खुदा को पुकारना चाहते हैं तब भी इसी नाम का सहारा लेते हैं। नाम खुदा से पहले, मैं गुलू नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि हम इस लिबास के साथ उस तरीके की गुफ्तगू नहीं कर सकते जिससे उलमा ने रोका है, जिससे खुद मासूमीन ने रोका है। मगर दलील देता हूँ। देखिए, नाम खुदा से पहले अली का नाम क्यों लेते हैं? खुदा वो है कि जिसकी बारगाह में जाना आसान नहीं है,
उसे पुकारना आसान नहीं है। उसकी बारगाह में जब अली जैसा इमाम जाता था तो कांपता रहता था। बहुत मुश्किल मरहला है उसको पुकारना, उसका नाम लेना, और हर मुश्किल के हल के लिए मुश्किल कुशा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहने वाले ने कहा, सोज़े दिल सोज़े जिगर दीदे नम रखता हूँ, सोज़े दिल सोज़े जिगर दीदे नम रखता हूँ, अपने सजदों से इबादत का भरम रखता हूँ, अपने सजदों से इबादत का भरम रखता हूँ। दिल की कुव्वत के लिए नाम खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पे कदम रखता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरी गलती जो है इस आयत के तर्जुमे बस इतनी है कि मैंने पूरी आयत का तर्जुमा किया है और एक लफ्ज वैसे ही दोहरा दिया है उर्दू में जो कुरान में आया है। लफ्ज अली को जेर जबर और पेश 3 हालतों में पढ़ा जा सकता है अरबी में। अली जन, अली जुन, अली जिन। जब जबर की हालत में होता है तो अली जन होता है। वजअलना लहुम, तर्जुमे की तरतीब जरा सी बदल रहा हूँ। वजअलना लहुम, हमने उनके लिए बनाया, करार दिया, लिसाना सिद्किन, सच्चाई की जबान को। अली यानी बुजुर्ग, अजीम, बरतर, उधर से तर्जुमा हुआ अजीम, बुजुर्ग और बरतर। अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई नहीं मानता है कि ये अली से मुराद नाम है, लोग यही समझें कि सिफत है, तो हम इसरार भी नहीं करेंगे कि आप मान लीजिए। कम से कम आपके ना मानने से कुरान तहरीफ से बचा तो रहेगा, कुरान तहरीफ से बचा तो रहेगा। अच्छा, आप अली कहिए, अजीम कहिए, बुजुर्ग कहिए, बरतर कहिए, फिर भी हमें एतराज नहीं। हमारा अली अजीम भी है, बड़ा भी है, बुजुर्ग भी है, बरतर भी है। ये तो देखिए, ये तो मैंने जवाब दिया, लेकिन जो बात मैंने कही है, हो सकता है बुजुर्गों में से किसी को अभी भी शक बाकी हो, तो आप सबके घर में दुआए नुतबा रखी होगी। दुआए नुतबा उठा के आप जाइएगा और इस नियत से पढ़िएगा। लहने कुरानी जो मैंने आपके सामने पेश किया, लहजे कुरानी का तर्जुमा जो किया है, इस लहने कुरानी को इमाम मासूम ने अपनी जबान से बयान कर दिया है। सल्लल्लाहु पढ़े बर मोहम्मद वाले। आइए, ये 4 दुआएं और उसके जवाबात। आखिरी दुआ पे बहुत तेजी से मैं आपको लेके आया, जहां पे आपको 5, 7, 10 मिनट रोकना था। अभी तक वो जिक्र था जो शायद आप पसंद करते हो, मगर अब वो जिक्र शुरू होगा जो अमीरुल मोमिनीन की पसंद है, जिसको अली पसंद करते हैं। बहुत तवज्जो चाहूंगा, शायद हमारे बुजुर्गों के लिए भी एक तोहफा हो, एक हदिया हो, दुआओं में याद रखिएगा। जनाब इब्राहिम की दुआओं का सिलसिला आगे बढ़ा। मैं एक बात और कह दूं कि अंदाज यही है, कुरान मजीद की वादियों में सफर करता रहता हूं, मजमे के एतबार से खुद को ढालने की कोशिश नहीं करता हूं, मजमे को अपने अंदाज में ढालने की पूरी कोशिश होती है। आइए थोड़ा सा और सफर करते हैं कुरानी आयात का। कुरान में एक सूरा है जिसे सूरह इब्राहिम कहते हैं। सूरह इब्राहिम में ही हमें एक दुआ मिली, वजनुबनी व बनिया अन्ना अब्दुल असनाम, खुदाया मुझे और मेरे बेटे को बुत परस्ती की नजासत से बचा ले। खुदाया मुझे अब उस मरहले पे ले आया हूं जो जहां से मजमे की एक फर्द मेरे साथ होगी। वजनुबनी व बनिया अन्ना अब्दुल असनाम, खुदाया मुझे और मेरे बेटे को बुत परस्ती की नजासत से बचा ले, बुत परस्ती की नजासत से बचा ले। आवाज कुदरत इब्राहिम जितना मांगा जाता है उससे कहीं ज्यादा देता हूं। तो सही नस्ल इब्राहिमी जहन में है ना। इब्राहिम ने दुआ की, खुदाया मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से बचा ले। आवाज कुदरत इब्राहिम, तुमने सिर्फ एक नजासत से बचाने की दुआ की है, मैं तुम्हारी औलाद को कायनात की सारी नजासतों से बचाऊंगा। चादर के नीचे आने तो दो। इन्नमा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तुमने सिर्फ एक नजासत से बचने की दुआ की है, मैं कायनात की सारी नजासतों से तुम्हारी औलाद को बचाऊंगा। चादर के नीचे आने तो दो। इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान गिरामी, अब जनाब इब्राहिम को ये दुआ किए हुए तकरीबन 2,500 से 3,000 साल गुजर गए। कम से कम 2,500 साल गुजरे और इसी मक्के की सरजमीन पे एक अजीम इंसान आया जिसे दुनिया यतीम अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से, नबी के अग़्ज़ का मरहला आया।
दुआ जहन में रहे। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदुल असनाम, खुदाया मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से बचा ले। नबी के अक़्द का मरहला आया, 25 बहारे नबी ने अपनी जिंदगी गुजार ली। अक़्द किसने पढ़ा, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, सब ने माना और लिखा। अब जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। खुद अक़्द पढ़ते पढ़ते एक जुमला कहते हैं, पूरी तवज्जो चाहूंगा मौलाइयों की। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदुल असनाम, इब्राहिम ने दुआ की थी इसी मक्के की सरजमीन पे, खुदाया मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से बचा ले। आवाज कुदरत आई, हम बचाएंगे, जो अहल बेटा तुम्हारा होगा उसको नजासत बुत परस्ती से बचाएंगे। अब नबी का अक़्द निगाह पढ़ते पढ़ते एक मरतबा जनाब अबू तालिब कहते हैं, दुआ को फिर दोहरा रहा हूँ, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदुल असनाम, खुदाया मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से बचा ले। जनाबे पैगंबर अकरम का अक़्द निगाह पढ़ते पढ़ते जनाब अबू तालिब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहिम, खुदा का शुक्र कि उसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया। खुदा का शुक्र कि उसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, नस्ल इब्राहिम में करार दिया। ये हमारे राइटर्स ने लिखा है, फरीकैन ने इस खुतबे को तहरीर किया है और इस जुमले को तहरीर किया है। मैं कहूंगा कि जनाब अबू तालिब नबी का अक़्द निकाह हो रहा है, तारीफ अपनी क्यों कर रहे हैं? क्या आपने किसी मौलाना साहब को देखा है जब खुतबा पढ़ने आए तो अपना शजरा बयान करें, अपनी तारीफें करें? कभी देखा? जब दस्तूर क्या है खुतबे का, जब खुतबे अक़्द पढ़ा जाता है तो तारीफ या खुदा की होती है या नबी की होती है, या नबी की होती है। ऐ जनाब अबू तालिब, ये आप अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अजब नहीं जनाब अबू तालिब, आवाज दे, देखो मेरे सामने जो बैठा है ना, ये नबियों का नबी है, ये वलियों का वली है, ये रसूलों का रसूल है, ये आलिमुल अंसाब है, ये आदम से लेके आज तक की पूरी नस्ल बशरियत पे नजर रखने वाला है। ये बेटे से ज्यादा बेहतर जानता है कि इसका बाप कौन है, और इसके सामने मैं खुद को इब्राहिम का बेटा कह रहा हूं ताकि गलत कहूं तो टोक दे। टोकता नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि कुरान की रोशनी में बुत परस्ती की नजासत मेरे करीब नहीं आ सकती है। सलवात बर मोहम्मद कुरान की रोशनी में बुत परस्ती की नजासत मेरे करीब नहीं आ सकती है। अज़ीज़ान गिरामी, एक रिवायत याद आ गई तो आपके सामने पेश कर दूं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुरानी आयत का सफर थोड़ी देर हुआ। जनाबे इमाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान के सिलसिले से पैगंबर अकरम जनाबे ज़ैद बिन हुसाम नबी के सहाबी हैं, उनके घर में दावत हुई। ज़ैद बिन हुसाम के घर में नबी की दावत हुई। दस्तरखान पे भेड़ की भुनी हुई रान आई। नबी ने पूछा, ये बताओ ज़बीहा किसका है, मुशरिक का या काफिर, मुशरिक का या मोमिन का, काफिर का है या मुस्लिम का है, ये ज़बीहा किसका है? अज़ीज़ान गिरामी, देखिए ये हमारे और आपके लिए हुक्म है, शरीयत का मसला है कि अगर किसी मुसलमान के घर जाओ तो तहकीक मत करो। आम मुसलमान की हुर्मत का इस्लाम ने ख्याल रखा है, लिहाजा जो दे रहा है उसे खामोशी से खा लो। तहकीक करने की जरूरत नहीं है कि आपने पाक लिया, नजिस लिया, हराम लिया, हलाल लिया। आम मुसलमानों की हुर्मत का इस्लाम ने ख्याल रखा है। हाँ, जिसके बारे में पता है कि ये लावाली है, ये बेपरवाह है, ये नजिस नापाक हराम हलाल का ख्याल नहीं रखता, अब उसके यहाँ बगैर तहकीक का खाना हराम है। उससे पूछना है, उससे सवाल करना है अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन आम मुसलमानों के यहाँ आपको तहकीक नहीं करना है, जो दे दे वो आप खा लीजिए, ये शरीयत का मसला है। ये बताइए क्या यही मसला नबी का भी है? यही मसला नबी का भी है? तवज्जो चाहूंगा, मजलिस खत्म करना चाह रहा हूँ, आखिरी मंजिल पे आपको लेकर के आया हूँ। यही मसला नबी का भी है? नहीं अजीजों, बहुत से मसाइल हमारे और नबी के मुख्तलिफ हैं। हम 17 रकत वाजिब पढ़ते हैं और 34 रकत हमारे लिए मुस्तहब है, मगर नबी 51 रकत वाजिब की नियत से पढ़ते थे। नमाज शब हमारे लिए मुस्तहब है मगर नबी के लिए वाजिब थी। नबी पूरी नाफिले जो होते हैं ये 34 रकत ये सब वाजिब था नबी के ऊपर। अज़ीज़ान गिरामी, तो नबी 51 रकत वाजिब की नियत से पढ़ते हैं, हम 17 रकत वाजिब की नियत से पढ़ते हैं। बहुत से मसाइल, इज़्दिवाज का मसला हो या कोई मसला हो, कुछ मसाइल अलग हैं नबी के, हमसे अलग हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो हम वो हैं कि जिनको इजाजत ये दी गई है कि जिनके यहाँ जा रहे हो जो दे वो खा लो, तहकीक न करो। मगर नबी वो है कि जिसके जिस्म में, जिसके बदन में एक कतरा भी नजिस,
एक लुकमा भी हराम लाइल्मी की वजह से भी नहीं जा सकता है, न जानने की वजह से भी नहीं जा सकता है। लिहाजा नबी ने हमको तो हुक्म दिया कि किसी मेजबान का दिल न तोड़ो, मगर वो नबी जो साहिब खुल्क का अजीम पैगंबर है वो जैद से पूछता है ये बताओ ज़बीहा किसका है। जैसे ही जैद ने कहा नबी अल्लाह ज़बीहा तो काफिर का है, नबी दस्तरखान छोड़ कर उठ गए, खड़े हो गए। ऐ ज़ैद मैं तो दुनिया को बताने के लिए आया हूं कि मुशरिक के हाथ का न खाओ, काफिर के हाथ का न खाओ, मैं कैसे खा सकता हूं? मेरे लिए एक लुकमा भी हराम और एक लुकमा भी नजिस नहीं जाता है, नहीं जा सकता मेरे बदन में, एक दाना भी नजिस मेरे लिए हराम है। अजीजान ग्रामी जुमला हवाले कर दूं, जो नबी ज़ैद का दस्तरखान छोड़ कोड़ गया कि एक लुकमा भी मैं काफिर के हाथ का नहीं खा सकता हूं, उसी नबी ने 45 साल तक अबू तालिब के घर में अबू तालिब के हाथों अबू तालिब के दस्तरखान पे खाना खाया। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। 45 साल तक अज़ीज़ान गिरामी जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान ही नहीं बल्कि उसके आगे की मंजिलों के लिए कुरान मजीद की बहुत सी दलीलें हैं और आयतें हैं। मैंने हल्का से सिर्फ इशारा किया है, वो जो सूरह अलक है, सूरह अलक में फलियदु नादिया सनदु ज़बानिया कुरान ने कहा, मुफस्सिरीन लिखा है और कुछ मुअर्रिखीन ने भी लिखा है जिसमें याकूबी भी शामिल हैं, जिनको बहुत से लोग यही कहते हैं, अक्सरियत ये कहती है कि अहले सुन्नत मुअर्रिखीन में से हैं। और अल्लामा सुलेमान हनफी कंदोजी ने भी इस जुमले को तहरीर किया है, इन लोगों ने भी तहरीर किया अहले सुन्नत में से बाज़ लोगों ने, कि ये जो आयत है फलियदु नादिया सनदु ज़बानिया कि लोग निदा दे रहे हैं और हमने निदा देने वालों, फरियाद करने वालों, चीखने वालों के लिए जहन्नम को तैयार कर दिया है। इसकी तफसीर में तहरीर किया गया है कि जब जनाब अबू तालिब की वफात हुई है, अब ये मैं मजलिस के नुक्ते नहीं पढ़ना चाहता हूं मगर एक दो हकीकतें हैं जो आपके हवाले कर रहा हूं रब्ते मसाइब से कबल। जब जनाब अबू तालिब की वफात हुई है तो वहां पर वलीद ने और अबू जहल ने नारा लगाया है पैगंबर अकरम की वफात, पैगंबर अकरम के चाचा जनाब अबू तालिब की वफात पर, रहलत पर फलियदु नादिया निदा दी, पुकारा इन लोगों ने। क्या आवाज लगाई कि चलो अब हम मोहम्मद को कत्ल कर सकते हैं, इसलिए कि जो मोहम्मद का मुहाफिज था वो मर चुका है, वो दुनिया से जा चुका है। तो आपने एक तरफ ये देखा कि कुफ्फार कुरैश ने जनाब अबू तालिब की रहलत पर खुशी का इजहार किया, दूसरी जानिब पैगंबर अकरम का किरदार आपने देखा कि पूरे उस साल को आमुल हुज़्न का नाम दिया, यानी गम का साल, जिस साल जनाब अबू तालिब दुनिया से गए थे, जनाब खदीजा भी उसी साल गई थी, उस साल को अब आपने अंदाजा लगाया अबू तालिब वो हैं कि जिनकी रहलत पर कुफ्फार खुश होते हैं, नबी गमज़दा होता है, नबी गमज़दा होता है। अज़ीज़ान गिरामी बहुत से मसाइल हैं, लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़ा, एक रिवायत बहुत मशहूर है, आखिरी जुमला फजाइल का आपके हवाले कर दूं, बहुत मशहूर है कि कलमा नहीं पढ़ा। एक रिवायत उस रावी की तरफ से चली है कि जो सिर्फ नबी की खिदमत में 6 महीना था और उसके बाद 90 साल जिंदा रहा, कम से कम 90 साल, फिर आगे की बात नहीं जानता हूं मैं, 90 साल जिंदा रहा कि जब नबी के ज़माने में हदीस लिखे जाने की ममनूया, नबी की रहलत के बाद खिलाफत अव्वलिया में हदीस नवीसी को मना कर दिया गया था कि हदीस नहीं लिखी जाएगी, फिर उसके बाद 90 साल तक हदीस नवीसी का सिलसिला बंद रहा और उमर इब्न अब्दुल अजीज नामी बनी उमैया का खलीफा जो 99 से 101 सन 101 हिजरी तक सिर्फ 3 साल तक खलीफा था, उसने कुछ काम किए हैं, वो भी सियासी मजबूरी के तहत किए हैं। उनमें से एक ये था कि नबी की हदीस लिखे जाने की इजाज़त दी है। अब ये साहब जो हदीसें गढ़ते हैं और यहाँ तक के प्याज और लहसुन खरीदे और बेचे जाने पर जन्नतें दिलवा रहे हैं, ये सही रिवायतों में है, सही किताबों में ये रिवायतें हैं कि जो शेख शर्जी से एक प्याज खरीदेगा उसको जो है शेख शर्जी ने पैसा ला के दे दिया है। ये सब होता है, आज के जमाने में भी होता है, पहले भी होता था। जो एक प्याज खरीदेगा उसको जन्नत में 1 बालिश जगह मिलेगी, नबी ने फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी ये साहब बड़े हाफिज़े वाले थे, 6 महीना नबी के पास रहे, 6 महीना, और उसके बाद यहाँ 6000 हदीसें नबी से गढ़ डाली और ऐसी ऐसी हदीसें कि प्याज और लहसुन के बदले में जन्नतें दिलवा रहे हैं। यही साहब हैं जो इस तरीके की रिवायतें कसरत से बयान करते हैं और उनकी ये रिवायत बहुत मशहूर हो गई, आपने सुना होगा, हमारे यहाँ भी आई है शोहरत के साथ।
अलबत्ता हमारे यहाँ अक्सरियत तनकीद की निगाह से पढ़ती है उस रिवायत को कि नबी अकरम ने जनाब अबू तालिब के आखिरी लम्हे में बंद कमरे में कान में झुक के धीरे से कहा कि चचा कलमा पढ़ लीजिए, मगर नहीं पढ़ा। अब वक्त नहीं है, वरना मैं अर्ज करता, मैं कुरानी आयतों को पेश करता। कुरान की एक आयत को बेस बनाया गया है जनाब अबू तालिब के ईमान पर हमला करने के लिए, और यह कहा गया है कि कुरान में एक आयत आई है, नबी अगर आप काफिरों के लिए इस्तिगफार करेंगे, काफिर के लिए इस्तिगफार करेंगे तो आपकी दुआ इस मरहले में कबूल नहीं होगी, आप इस्तिगफार चाहे कर लीजिए। ये आयत जो आई है ये मदीने में नाजिल हुई है, ये आयत मदीने में नाजिल हुई है। ये कहा गया कि ये अबू तालिब के लिए आयत आई है। इन लोगों ने कहा अबू तालिब के लिए आयत आई है कि अबू तालिब के लिए आप इस्तिगफार लाख करते रहिए, नबी अल्लाह आपकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ये मदीने में नाजिल हुई आयत, और मदीने हिजरत से पहले ही पैगंबर अकरम के चचा दुनिया से जा चुके थे, और ये आयत अबू तालिब पे मंसूब कर दी गई। बहरहाल तो उसी को बेयार और बेस बना करके ये रिवायत गढ़ी गई कि बंद कमरे में कहा धीरे से चचा कलमा पढ़ लिए। एक चीज होती रिवायत और एक चीज होती दरायत। मैं सादा लफ्जों में इसका मफहूम बयान कर दूं। रिवायत उन लफ्जों को कहते हैं, वो वर्डिंग है जो बयान की जाती है, जो जबान पे आती है। दरायत उसके पीछे छुपे हुए कुछ हकायक होते हैं जिनको खंगालना पड़ता है और नतीजे के तौर पे सामने लाना पड़ता है, इसको दरायत कहते हैं। रिवायत तो आपने सुनी, मगर कभी दरायत पे गौर किया और यकीन कर लिया रिवायत सुनने के बाद? देखिए इस रिवायत में खुफियगी के तेहरे तेहरे पर्दे हैं, पोशीदगी के तेहरे तेहरे जरिए हैं। बंद कमरे में एक, कान में झुक के दो, धीरे से कहा तीन। मैं पूछूंगा ये बंद कमरे की बात रावी तक पहुंची कैसे? कौन था नबी के घर में जासूसी करने वाला जिसने नबी के बंद कमरे के राज को भी राज नहीं रहने दिया? मगर सुनिए, बंद कमरे में एक, कान में झुक के दो, धीरे से कहा। पूरी दुनिया ने माना। जो बात नबी ने बंद कमरे में कही वो सब ने सुनी, जो बात नबी ने खुले मैदान में सबको दिखा के कही वो किसी ने नहीं मानी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़े आप बजा मिलकर। तो अज़ीज़ान गिरामी, नमाज का जिक्र मैंने किया, तो नमाज के हवाले से फजीलत का भी एक गोशा रब्त मसाइब के लिए पेश कर दूं। देखिए क्या कहा गया कि कलमा नहीं पढ़ा, ठीक है, अलनन कलमा नहीं पढ़ा, हम भी थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि नहीं पढ़ा, मगर उसके पीछे तो जाइए, डीप में जाइए, गहराई में जाइए, कोई तो रीजन हो सकता है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आशूर के दिन जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर ने नमाज पढ़ी? आप में से कौन है ऐसा जो ये कहे कि नमाज पढ़ी? पढ़ी नमाज? नहीं पढ़ी ना। और कौन है आप में से जो ये कहे कि सईद और ज़ुहैर बेनमाजी थे? है कोई जो ये कहे कि सईद और ज़ुहैर बेनमाजी थे? नमाज नहीं पढ़ी, मगर नमाज न पढ़ करके भी इतना बड़ा काम किया कि इमाम वक्त को नमाज पढ़वाई है। इमाम वक्त को नमाज पढ़वाई है। किसी में जुर्रत नहीं है जो सईद और ज़ुहैर के लिए कह दे कि बेनमाजी थे, बेनमाजी थे। नमाज न पढ़ करके जाहिर में, मगर नमाज को पढ़वाया है, नमाज को बचाया है, नमाज को बचाया है। अगर ये नमाज पढ़ने लगते तो हुसैन शहीद हो जाते, फिर हुसैन को नमाज पढ़वाता कौन? हुसैन को बचाता कौन? अबू तालिब ने जाहिर में उन लोगों के साथ हम मजहब होने का इजहार इसलिए किया ताकि वो डायरेक्ट नबी पे हमलावर ना होने पाए। बीच में अबू तालिब के शक्ल में एक दीवार थी और पैगंबर बने रहे अबू तालिब। अगर अबू तालिब भी कलमे का इजहार कर देते तो अब ये हमले नबी की बजाय अबू तालिब की तरफ मबजूल हो जाते, तो नबी को बचाता कौन? तो अबू तालिब ने खुद जाहिर में कलमा न पढ़ के सारे जमाने को कलमा पढ़वाया है, सारे जमाने को कलमा पढ़वाया है। मुहाफिज हैं ये, मुहाफिज हैं और वो महफूज हैं। इस्लाम और रसूल इस्लाम महफूज हैं और नबी और अबू तालिब की जात मुहाफिज की है। फिर बहुत सी दलीलें मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद इनके ईमान पर हमला क्यों किया गया? इसका जवाब हमें मिला करबला के मैदान में। करबला में देखिए एक जात थी जिसकी दुश्मनी में बाप के ईमान पे बेटे के जान पे हमला किया गया। करबला के मैदान में जनाब इमाम हुसैन ने जब सवाल किया तुम मुझे किस जुर्म में शहीद कर रहे हो? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया
या हराम मोहम्मदी को हलाल, तो आवाज़ दी गई बुग़्ज़न लिअबीक, हम आपको आपके बाबा की अदावत में शहीद कर रहे हैं। यही अली की दुश्मनी थी कि जिसके नतीजे में जनाब इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, उसके पहले जनाब अबू तालिब के ईमान पे हमला किया गया। हाँ, मैं आपको करबला ले आया। हुसैन ने कहा, इकरार ले लिया कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेखता हूँ, मुझे बेजुर्म खता शहीद किया जा रहा है। हाँ ज़ादारो, ये अय्याम वो अय्याम हैं जो अहले हरम की असीरी के अय्याम हैं। कूफा और शाम के मराहिल तय हो रहे हैं, सफ़र का महीना शुरू हो चुका है। आपने मुहर्रम से चांद रात से गिरिए का सिलसिला शुरू किया, मगर मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या गिरिए का हक अदा हो गया? क्या आप मुतमईन हो चुके हैं कि जितने आंसू जरा बीबी फातिमा के रुमाल की जीनत बननी चाहिए थी आप बना चुके हैं? ज़दारो, गिरिया कितना भी किया जाए मगर हम हक के गिरिया अदा नहीं कर सकते हैं। और याद रहे कि आप उलमा से सुनते रहते हैं कि हमारा मकसद है, हमारे मकासद हयात में से अहम तरीन मकसद यह है कि हुसैन की अज़दारी करना है, हुसैन पे गिरिया करना है। अज़ीज़ान गिरामी, आप ये अय्याम वो अय्याम हैं कि जो हुसैन के अहले हरम पे रोने के अय्याम हैं। हुसैन के जो घर वाले थे उनको अजीब व गरीब बेकसी और बेबसी के साथ करबला से कूफा और कूफा से शाम के मराहिल से गुजारा गया। जब करबला से काफिला चलने लगा तो बीबियों को ऊँट की नंगी पुष्प पे सवार किया गया और उस मरहले में सकीना 4 साल की हैं, छोटी बच्ची है। होना तो ये चाहिए था कि सकीना को मेरा बाप के साथ बैठाला जाता, मगर जालिमों ने ऐसा नहीं किया। ऊँट की नंगी पुष्प पे अकेले सकीना को बिठाया गया है। सकीना तन्हा है ऊँट की पुष्प पे। और आपने बच्चों की फितरत को देखा है, अगर बच्चों को बुलंदी पे बैठाया जाए तो बच्चे डरते हैं, घबराते हैं और बार बार हाथ बढ़ाते हैं कि सामने कोई हो तो हमें आगोश में ले ले। सकीना भी जब ऊँट की बुलंदी पे बैठा ली गई तो कभी माँ को देखती हैं, कभी फूफी को पुकारती हैं और कभी भाई से कहती हैं भाई मुझे बचा लो। और तारीख कहती है कि बार बार हाथ बढ़ाती हैं तो सकीना गिर जाती हैं। यहाँ तक कि जब राह कूफा में सकीना गिरने लगी, कई बार सकीना गिर चुकी, तब उसका रास्ता ये निकाला गया कि शिमर बेहा ने रस्सी से ऊँट की पुष्प पे सकीना को जकड़ दिया। जैसे जैसे ऊँट आगे बढ़ता था सकीना का सीना छलनी होता था। अजरक वल्लाह, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद होने लगी। मुसीबत की वो दास्तानें सामने आ रही हैं कि आप में सारे इंसान आंसू बहाएगा। तारीख कहती है कि सकीना आप शाम आ गई। कूफे के मराहिल को तय करते हुए शाम में अहले हरम को बहुत तारीख जिंदान में कैदी बनाया गया था। और तारीख के ये अल्फाज हैं कि शाम में जो जिंदान था वहाँ एक छोटा सा झरोका था। उस झरोके पे जब शाम का वक्त होता था तो सकीना की बेचैनी बढ़ने लगती थी, सकीना घबराने लगती थी। सोचे 4 साल की बच्ची है, ऐसे हालात में किस कदर बेचैन होगी। सकीना शाम के वक्त उस झरोके पे आके बैठ जाया करती थी और सकीना, जनाब सकीना का ये अंदाज था कि उस झरोके से बाहर देखा करती थी। छोटे छोटे दमिश्क के बच्चे हैं जो आपस में खेल रहे हैं। वो खेलते हुए बच्चे उस झरोके के करीब आते हैं, सकीना से बातें करने लगते हैं। अज़ादारों, बच्चों में दोस्ती जल्दी हो जाती है, बच्चे एक दूसरे से जल्दी मानूस हो जाते हैं। और फिर अगर सकीना जैसी बाशऊर बच्ची हो तो क्यों ना बच्चे उससे नजदीक हो जाएं। चुनांचे बच्चे आए और सकीना से उनकी दोस्ती हो गई, सकीना से बातें होने लगी। सकीना जो मारिफ अहले बैत से सरशार थी, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन बच्चों को बताती रहती थी। यहाँ तक कि एक रोज किसी बच्चे ने सकीना से सवाल किया जिसने सकीना को तड़पाया। बच्चों ने सवाल करना शुरू किया, आवाज दी, ऐ बहन ये बताओ कि तुम्हारी खता क्या है, तुम्हें किस जुर्म में यहाँ कैदी बना के लाया गया, किस जुर्म में कैदी बना के लाया गया है। सकीना ने कहा हमारी खता बस ये है कि हम बेखता हैं, हमारा जुर्म बस ये है कि हमने कोई जुर्म न किया। बच्चों ने सवाल किया, कहा ये बताओ अगर तुम बेखता हो और तुम्हें बेजुर्म खता कैदी बनाया गया है तो क्या तुम्हारा बाबा तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारा बाबा तुम्हें बचाने क्यों नहीं आता। सकीना ने कहा मेरा बाबा मुझे बहुत अजीज रखता है, मगर वो देखो मेरा बाबा मारा गया, नोके नेज़ा पे मेरे बाबा का सर है। अजरक वल्लाह, मैं देख रहा हूँ
इनके कुछ लोगों की आंखों में आंसू है, मगर अभी आवाज़ गिरिया उनका बुलंद नहीं हुआ। मैं एक रिवायत पढ़ दूं, मोतबर रिवायत है, मैंने अपनी आंखों से किताबों में देखा है। इमाम जाफर सादिक का ज़माना है, मसाइब हुसैन पढ़े जा रहे हैं। एक मरतबा इमाम ने अपने अजीम सहाबी जनाब अबू वसीर को टोक दिया, अबू वसीर तुम्हें क्या हो गया है? मेरे जद के मसाइब पढ़े जाते तुम रोते नहीं हो, तुम रोते नहीं हो। अबू वसीर ने आंसुओं से भीगा हुआ रुमाल पेश कर दिया। आका रो तो रहा हूँ, अब कैसे रोऊं? इमाम ने कहा ऐसे नहीं, मेरे जद की मुसीबत ऐसे रो जैसे दादी फातिमा चाहती है, जैसे एक माँ अपने जवान लाल पे चीख चीख के रोती है। खासदारों, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद होने लगी। मसाइब के चंद जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ, बहुत दर्दनाक मसाइल हैं। वो अफराद जिनकी आंखों में आंसू है, उनकी भी आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। अज़ादारों, तारीख कहती है, बच्चों ने फिर सवाल किया, ये बताओ क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है? कोई भाई नहीं है जो तुम्हें बचाने आए? सकीना ने कहा, एक मेरा छोटा भैया था, 6 महीने का असगर, वो करबला में तीर खा के सो रहा है। मेरा बड़ा भाई एक करबला में मारा गया, सीने पे बर्छी की अनी लगी। दूसरा भाई बड़ा मौजूद तो है, मगर मैं क्या करूं? उसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। मुझे शर्म आती है कि मैं अपनी बातें उसके सामने कैसे रखूं? बच्चों ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा कोई चचा नहीं है? कोई चचा नहीं है? अब सकीना ने तड़प के कहा, मेरा अजीज चचा मेरे लिए पानी लेने गया था, मगर दरिया पे शाने कलम करा के सो रहा है। अल्लाह, ये गुफ्तगू सकीना से हो रही थी बच्चों की, और रोजाना सकीना कुछ न कुछ अच्छी बातें बच्चों को बताती थी। एक रोज ऐसा हुआ, अज़ादारों अब तड़प के गिरिया करेंगे, एक रोज ऐसा हुआ कि इस बच्चे खेलते हुए हस्ब दस्तूर शाम के वक्त आए। उन्होंने देखा जिंदाने शाम में वो झरोका तो वैसे ही है, मगर वो बच्ची जो हर रोज रहती थी आज नजर नहीं आती। अब वो बच्ची दिखाई नहीं देती। उन बच्चों ने अंदर झांक के देखा, एक मुअज्जमा है जो घुटनों में सर दबाए हुए आंसू बहा रही है, गिरिया कर रही है। बच्चों ने पुकारा, ए बीबी जरा करीब आइए। बीबी से बच्चों ने सवाल किया, ए बीबी, यहाँ रोज एक बहन हमारी एक बच्ची बैठा करती थी जो हमको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताती थी, उसका नाम सकीना था, जरा हो सके तो उसे बुला दीजिए। बस अब उस बीबी ने कहा, अरे मैं उस बच्ची की माँ मेरा बाप है, अरे बच्चों मैं मेरा बाप हूँ। बच्चों अब सकीना तुम्हारे पास ना आएगी, अरे सकीना मर चुकी है, दुनिया से रुखसत हो गई, हम उसे दफना के आए हैं। अल्लाह, मसाइब का आखिरी मंजर आपके हवाले कर दूं, सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। अज़ादारों, सकीना के रहलत का अंदाज क्या था? 2 रिवायतें एक जिंदान शाम की हैं और एक दरबार शाम की है। मैंने अपनी आंखों से खुद मोतबर रिवायतों में दरबार शाम की रिवायत देखी है कि सकीना के रहलत का मंजर क्या है। आखिरी जुमला मजलिस तमाम कर रहा हूँ। तारीख कहती है कि जब ये अहले हरम दरबार यजीदी में पहुंचे तो यजीद तख्त खिलाफत बैठा है, अहले हरम जमीन पे बैठे हैं। अल्लाह अकबर, खानवादे इस्मत से ताल्लुक़ वाली ये सैदानियाँ खाक पे बैठी हैं, यजीद नहस तख्त पे बैठा है। और एक मरतबा यजीद ने अपनी आगोश में बैठी हुई सकीना की हम उम्र बच्ची के सर पे हाथ फेरना शुरू किया, उसे बोसा देना शुरू किया। सकीना देखती जाती है, बाबा की मोहब्बत याद आती जाती है। अज़ादारों, तारीख कहती है कि एक मरतबा यजीद ने सवाल किया सकीना को तड़पाने वाला, ऐ सकीना, मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा भी तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करता था जैसे मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। एक मरतबा सकीना ने कहा, ऐ यजीद, अपनी गंदी जुबान से मेरे बाबा का नाम न ले, मेरा बाबा इससे कहीं ज्यादा मुझे अजीज रखता था। एक मरतबा यजीद ने कहा कि क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहोगी? मिलना चाहोगी? अज़ादारों, क़यामत का मंजर है। खुदा सकीना के सदक़े में आप सबके बच्चों को सलामत रखे। बेटियों को बाप से कुछ खास लगाव होता है। अज़ादारों, 4 साल की बच्ची है, उसने कहा यजीद तेरा बड़ा एहसान होगा अगर मुझे मेरे बाबा से मिलवा दे। अज़ादारों, तारीख के ये अल्फाज हैं, एक मरतबा यजीद ने हुक्म दिया, वो तश्ते तला सामने रखा गया जिसमें हुसैन का कटा हुआ सर था। बाप से बिछड़ी हुई बेटी की तस्कीन के लिए
लिए कैसा जरिया फराहम हो रहा है। बाप का कटा हुआ सर सामने आया, सकीना ने चाहा कि बढ़ के सर हुसैन को आगोश में ले ले, सकीना को रोक दिया गया। यजीद ने आवाज दी, सकीना ऐसे तुम अपने बाबा के करीब नहीं जा सकती, मैं तब मानूंगा कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करता था कि जब तुम आवाज दो और सर हुसैन खुद उठे और तुम्हारी आगोश में आ जाए। अज़ादारों, तारीख के अल्फाज है, बस सकीना ने कुर्ते का जला हुआ दामन फैलाया, आवाज दी, अरे बाबा, अरे हमारी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, बाबा मेरी आगोश में आ जाइए। अरे कयामत हुई, सरे हुसैन बुलंद हुआ, आगोश सकीना में आया। सकीना ने मुंह पे मुंह रख दिया, अरे बाबा आपके बाद चेहरे पे तमाचे लगे, गोशवारे इस तरह छीने गए कि कानों की लवे फट गए। अल्लाह रोने के सिलसिले को रोक रहे हैं अज़ादारों। आखिरी जुमला, बस सकीना रोते रोते एक बार खामोश हो गई। बीबियां समझी कि सकीना को सुकून मिल गया है, मगर अब जो आबिदे बीमार आगे बढ़े, शाना हिलाया, आवाज दी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ पुपी अम्मा, सकीना रुखसत हो गई। वास्ता है अहले बैत अलैहिस्सलाम का हमारे नमाज कबूल फरमा ले। मकबूल है उन्हें कर्ज से जो बीमार होने बीमार करबला के सबके में शिफा फरमा। हमारे कौम के अफराद जहाँ जहाँ भी बिलखुसूस इस ममलिकत में जो अफराद बेस्तर भी जरिए माश के लिए कोशा हैं, उनको उनके मकसद में कामयाबी न फरमा। परवरदिगार हमारी कौम के अफराद जहाँ भी नौजवान हैं, बिलखुसूस इस ममलिकत में जो लोग भी तहसील इल्म की गरज से आए हैं, इन सबको दौलत इल्म से माला माल फरमा दे। परवरदिगार वारिस करबला इमाम ज़माना के ज़हूर में तारीफ़ फरमा, हमें उनके नास्ते में शुमार फरमा। आपसे गुजारिश है कि सूरह हम्द और इखलास की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन की रूह को इसाफ़ फरमाएं। सैयद अज़हर अली साहब इब्ने सैयद यहिया अली, सैयद रियाजुद्दीन हैदर साहब इब्ने सैयद मोहम्मद रज़ी, मजीदा बेगम बिनते सैयद अबू मोहम्मद। खो गए हो तुम कहाँ ढूंढती मादर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। खो गए हो तुम कहाँ ढूंढती मादर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। जख्म सीने पर लगा और जिगर तक छिद गया, खून से रंगीन है सरज़मीने करबला, सरज़मीने करबला। हाथ रख लो ज़ख्म पर, आती है मादर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। खो गए हो तुम कहाँ ढूंढती मादर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। आरज़ू ये थी मेरी देखूं सहरे की लड़ी, हाय किस्मत क्या करूं, खून में मैयत भरी, खून में मैयत भरी, खून में मैयत भरी। सेज फूलों की कहाँ
خاک کا بستر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے کھو گئے ہو تم کہاں ڈھونڈتی مادر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے محسن و یاور نہیں شاہ کا لشکر نہیں سو گئے عباس بھی گود میں اصغر نہیں گود میں اصغر نہیں گود میں اصغر نہیں سینکڑوں رنجو مہن اور ایک سرور اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے کھو گئے ہو تم کہاں ڈھونڈتی مادر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے ایک سکینہ سی بہن شلح کوڑوں سے بدن باندھنے کو حلق میں شمر لایا ہے رسن شمر لایا ہے رسن شمر لایا ہے رسن ظلم کی ہے انتہا چھن گئے گوہر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے کھو گئے ہو تم کہاں ڈھونڈتی مادر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے توق تازار ہے عابد بیمار ہے زینب و کلثوم اور شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے شام کا بازار ہے بعد تیرے اہل شر لے گئے چادر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے یا حسین 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 بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو سر پر بھی نہیں چادر سر پر بھی نہیں چادر لاکھوں ہے تماشائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں میرا ہے خاک کے سفر سر پر حرات رسن بستا پردیس میں زینب کو تقدیر کہاں لائی
عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو پیوست ہے نیزے میں سر شاہ شہیدہ کا یہ دیکھ کے اے غازی پھٹتا ہے میرا سینہ مر جائے گی اس غم میں شبیر کی ماں جانی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو دنیا کا سہارا ہے بابا جو ہمارا ہے مشکل میں مگر میں نے تم کو ہی پکارا ہے اب ڈھونڈتی ہے تم کو بھیا میری بینائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو اے شیر جری میری امداد کو آ جاؤ مانگا ہے کنیزی میں ظالم نے سکینہ کو ہے وقت قیامت کا معصوم ہے گھبرائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں I'll say, 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 no.